السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن سے قبل کل جماعتی میٹنگ آج نئی دہلی میں پارلیمنٹ کمپلیکس کے احاطے میں منعقد ہوئی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ مستقل ترقی کی منازل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ حیدرآباد کے ایل بی نگر حلقے میں وہ آج کئی ایک ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دے رہے تھے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI نے TRS قانون ساز کونسل کے رکن کویتا سے اس ماہ کی 11 تاریخ کو دہلی شراب تحقیقات معاملے میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے۔ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن سے قبل کل جماعتی میٹنگ آج نئی دہلی میں پارلیمنٹ کمپلیکس کے احاطے میں منعقد ہوئی۔ پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کا آغاز کل سے شروع ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی، مملکتی وزیر برائے پارلیمانی امور ارجن رام میگھوال اور وی مرلی دھرن نے شرکت کی۔ کئی ایک اپوزیشن جماعتوں کے قائدین بشمول کانگریس، DMK، TMC، NCP اس موقع پر موجود تھے۔ میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ حکومت صدارتی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے آج ورچوئل ڈرون ای لرننگ پلیٹ فارم نام کا چنئی کے قریب اگنی کالج آف ٹیکنالوجی چنگلا پیٹ میں افتتاح انجام دیا۔ وزیر موصوف نے ڈرون یاترا کو بھی جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ڈیفنس، ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، سینما اور دیگر کئی ایک شعبے جات میں ضروری ہو چکا ہے۔ توقع کی جا رہی کہ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن میں تلنگانہ کے TRS ارکان پارلیمنٹ مرکز کی ریاست تلنگانہ سے متعلق ہو رہی ناانصافی کو لے کر آواز بلند کریں گے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل TRS کے صدر اور چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ نے پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کو BJP حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے اور ریاست تلنگانہ کے ساتھ ہو رہی ناانصافی پر آواز اٹھانے کی ہدایت دی۔ 16 دن جاری رہنے والے سرمائی اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ ریاست کو جاری کیے جانے والے فنڈز میں ہو رہی تاخیر کو لے کر بھی آواز بلند کریں گے۔ ورلڈ بینک نے آج کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت میں 2022-23 میں 6.9% ترقی کا اضافے کا نشانہ ہے، جبکہ اس سال نومبر تک 6.5% ترقی میں اضافہ درج کیا گیا۔ ورلڈ بینک نے کہا کہ نوساد اور مشکل حالات کے باوجود ہندوستان ترقی کر رہا ہے اور GDP کی شرح مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہفتے کی دوپہر منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں دھان کی فصل، ریتو بندھو فنڈز کی اجرائی، کمزور اور پسماندہ طبقات کو اپنی ذاتی اراضی پر مکانات کی تعمیر کے لیے مالی مدد، دلت بندھو اسکیم کی عمل آوری، دیگر اہم امور پر غور و خوض کیا جائے گا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ 6 دسمبر ہندوستانی جمہوریت کے لیے ہمیشہ یوم سیاہ رہے گا۔ انہوں نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کی بے حرمتی اور شہادت ناانصافی کی علامت ہے۔ شہادت کے لیے ذمہ دار افراد کو کبھی مجرم نہیں بنایا گیا۔ ہم اس بات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مستقبل کی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں۔ خاتون جہدکار و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ڈاکٹر اسما زہرا نے بھی کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دوران حیدرآباد میں بھی سخت پولیس انتظامات کے دوران مسجد کی شہادت کی برسی پرامن انداز میں منائی گئی۔ پولیس کی جانب سے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس بار گزشتہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین اور دیگر کسی بھی بڑی مسلم تنظیموں کی جانب سے بند یا یوم سیاہ منانے کی اپیل نہیں کی گئی۔ اس نے توڑا بابری مسجد کو کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی، ان کی نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ پارلیمنٹ کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو کہ جب نریندر مودی کی سرکار نے CBI، ED، سینٹرل ویجیلنس کمشنر کے ڈائریکٹرز کی میعاد میں اضافہ کیا تو اسدالدین اویسی نے آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر
पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा किया, ये सीबीआई किस काम की है। जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट ने पूछा कि बताओ, क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया, क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को उसको शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने YSRTP चीफ YS शर्मिला से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू 10 मिनट तक जारी रही। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनसे पदयात्रा के दौरान TRS कारकुनों की जानिब से किए गए हमले और पुलिस की जानिब से इन्हें कार समेत उठाकर मुंतकिल किए जाने को लेकर बातचीत की। YS शर्मिला ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस खुसूस में इन्हें फ़ोन कॉल करके हाल दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा कि वो नई दिल्ली पहुँचकर इनसे मुलाकात भी करेंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वासुदेव कुटुंबम ग्लोबल फैमिली के नज़रिए को अपनाने का मशवरा दिया था, ताकि सब लोग मिलजुल कर आज़ादी के साथ एक दूसरे की इज़्ज़त अफजाई करते हुए बिला तफरीक ज़िंदगी गुजारे। BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर वज़ीर आला KCR ने इन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। मरकज़ी वज़ीर बराए सेहत किशन रेड्डी ने टैंक बंड पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए इन्हें भरपूर खिराज पेश किया। कई काबिनी वज़रा ने भी आज डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया है। TRS, कांग्रेस, BJP और TDP जमातों की जानिब से बाबाए दस्तूर को खिराज पेश किया गया। आज सुबह के अव्वलीन सातों में ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के बिलालपुर में 3.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। हैदराबाद के मगरिब शुमाल मगरिब से 87 किलोमीटर दूर रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। कौमी मरकज़ बराए सिस्मोलॉजी NCS के मुताबिक सुबह 3:23 पर यह वाक़या पेश आया। ताहाल किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की इतलात नहीं है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने TRS कानून साज कौंसिल की रुकन कविता से इस माह की 11 तारीख को दहली शराब तहक़ीक़ात मामले में पेश होने के लिए कहा है। वाज़ेह है कि MLC की कविता ने इससे कबल CBI को मुतल्ला किया था कि वो CBI के रूबरू हाजिर नहीं हो पाएंगी और इन्हें दीगर तारीख देने की गुजारिश की थी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तरक्याती प्रोग्राम में दाखिला लेने की ऑनलाइन आखिरी तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जबकि 14 दिसंबर तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है। ऑफलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम 12 ta 14 दिसंबर मुकम्मल कर लिया जाएगा और 16 तारीख से क्लासेस का आगाज़ होगा। इस ज़िमन में तिलबा यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.manu.edu.in पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरा ज़िले करीमनगर के पेश नज़र वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने कलेक्ट्रेट में अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ़ हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के दौरे के तमाम मुनासिब इंतज़ामात किए जाएँ और अहदेदारों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ़ ने कलेक्ट्रेट में जदीद तर्ज के तामीर करदा R&B गेस्ट हाउस के कामों का मुआयना किया। कलेक्टर RV कन्नन, CP सत्यनारायण, मेयर सुनील राव, ZP चेयरपर्सन विजया ने इस जायज़ा इजलास में हिस्सा लिया। वज़ीर आला कल जगतियाल में कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद करीमनगर पहुँचेंगे। KTR वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वज़ीर सनअत ने कहा कि हुकूमत का मकसद अवाम की तरक्की व खुशहाली और अमन है। रियासती IT और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर कल्वाकुंटला तारक रामाराव ने
کہا کہ تلنگانہ میں گزشتہ 8.5 سال سے چیف منسٹر KCR کی قیادت میں حکومت چل رہی ہے، جس میں ترقی اور فلاح بہبود کے 2 مقاصد ہیں۔ منگل کو LB نگر میں وزیر نے ناگول سے بنڈا گوڑا پیرزادی گوڑا کا بھی دورہ کیا۔ بعد ازاں وزیر نے منعقدہ پروگرام میں خطاب کیا اور کہا کہ KCR حکومت سے قبل ریاست کی فی کس آمدنی 1,24,000 تھی اور تلنگانہ کی آمد کے 7 سال کے اندر یہ 2,78,000 فی کس آمدنی کے ساتھ ملک بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی خوشحالی میں اور بھی اضافہ ہو، اسی لیے نئے ترقیاتی کام جاری کیے گئے ہیں۔ డిసెంబర్ నెలాఖరు వరకు మరొక 17 పనులు పూర్తి చేస్తాం. దాంతో పాటు మరొక 15 పనులు జనవరి 23 నాటికంటే వచ్చే నెల ఆఖరు నాటికి వాటిని కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఇంకొక 2 పనులు ఆ హుసేన్ సాగర్ సర్ప్లస్ నాలా, బుల్కాపూర్ నాలా, ఈ 2 మాత్రం ఎండాకాలం లోపల ఏప్రిల్ 23 లోపల దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం. మొత్తం 985 కోట్ల రూపాయలతో స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఏ తీరుగానైతే మీ LB నగర్ చౌరస్తాను SRDP కింద దాని రూపురేఖలు మార్చిందో ఈ ప్రభుత్వం, అదే పద్ధతుల్లో SNDP ద్వారా కూడా నగరం నలుమూలలా నలువైపులా ఉండే ఈ నాలాల సమస్యను కూడా పరిష్కరించాలనే చిత్తశుద్ధితో 985 కోట్ల రూపాయలతో మొదటి దశలో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఆ 985 కోట్ల రూపాయల్లో GHMC పరిధిలో 773 కోట్లు, అదేవిధంగా మిగతా మున్సిపాలిటీలు హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉండే ఫీర్జాదిగూడ కానీ, బోడుప్పల్ కానీ, జల్పల్లి కానీ, నిజాంపేట కానీ, ఇతర మున్సిపాలిటీలు కొంపల్లి కానీ వాటన్నిటి పరిధిలో మరొక 220 కోట్ల రూపాయలతో పనులు తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా రాబోయే వర్షాకాలం లోపల పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందజేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అది మాత్రమే కాదు, SNDP 2వ దశ కూడా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే 1000 కోట్లు సరిపోవు, ఇంకా కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నది, IT వస్తున్నది, కొత్త IT పరిశ్రమలు, కొత్త ఇండస్ట్రీలు వస్తూ ఉన్నాయి. లక్షల సంఖ్యలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక అయస్కాంతం మాదిరిగా, మ్యాగ్నెట్ మాదిరిగా లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు హైదరాబాద్కు وزیر صحت و فائنانس نے کہا کہ بینائی کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت نے روشنی پروگرام شروع کیا ہے، عوام اس سے استفادہ کرے۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے واضح کیا کہ کنٹی ویلگو یعنی آنکھوں کی روشنی پروگرام دراصل ریاست میں بصارت کی کمی سے 2-4 افراد کی نقائص کو روکنے کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ریاستی وزیر صحت نے جگتیال کلکٹریٹ سے آنکھوں کی روشنی پروگرام کے نفاذ کے منصوبے پر بات کی، بلکہ ریاست کے تمام اضلاع کے کلکٹرز، ایڈیشنل کلکٹرز اور ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ ریاستی حکومت کا ہر وزیر اور ہر قائد و کارکن حرکیاتی انداز میں عوام کی فلاح بہبود سے متعلق پروگرام پر عمل آوری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس طرح کے کام آزادی کے بعد سے اب پہلی بار کیے جا رہے ہیں۔ سکندرآباد کے علاقے میں ایک شخص کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈال کر چھرا گھونپ دیا گیا اور 14 تولے طلائی زیورات لوٹ لیے گئے۔ سکندرآباد میں پیر کی رات ہوئی ڈکیتی کی واردات نے کوہرام مچا دیا۔ سٹی لائٹ ہوٹل کے قریب چہل قدمی کے دوران غنڈوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں نے پون کے آنکھ میں مرچ پاؤڈر پھینکا اور اس پر چاقو سے وار کیا۔ اس کے بعد اسے 14 تولے سونے کے زیورات لے کر چل دیے۔ دراصل زخمی شخص پون نے رادھے جیولرز سے سونا خرید کر سکندرآباد روانہ ہوا تھا۔ چوروں نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس سے سونا چھین لیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واردات پر پہنچ کر پون کو گاندھی ہسپتال پہنچایا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے مجرمین کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکومت نے تینوں مذاہب کے لیے فتح اللہ گڑھا LB نگر علاقے میں 6.5 ایکڑ اراضی قبرستان اور آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے مختص کی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے تینوں مذاہب کے لوگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جدید طرز کے ساتھ وائی کنٹا دھام کی تعمیرات کے لیے 6.5 ایکڑ اراضی LB نگر کے فتح اللہ گڑھا میں مختص کی ہے۔ اس کی تعمیرات کے لیے 16 کروڑ 25 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس رقم سے ہندو شمشان گھاٹ، مسلم قبرستان اور عیسائی قبرستان تعمیر کیے جائے گا، جہاں اپنے مذاہب کی عبادت گاہیں بھی تعمیر کی جائیں گی، جس میں غسل خانے بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ خصوصی سیوریج پلانٹ اور سولار کے ذریعے برقی کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ گجرات ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوں گے، عام آدمی پارٹی 100 سیٹیں حاصل کرے گی، عام آدمی پارٹی کے کیجریوال کا دعویٰ۔ گجرات کے ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوں گے کیونکہ یہاں 100 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی کو کامیابی حاصل ہوگی، کیجریوال نے کیا دعویٰ۔
दरअसल एग्जिट पोल्स ने वाज़ेह कर दिया है कि गुजरात असम्बली इंतखाबात के नताज में आम आदमी पार्टी को 8 सीटों पर भी ही इक्तफा करना पड़ेगा। इस पर रद्द अमल देते हुए दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल ने तबसरा किया कि गुजरात इंतखाबात में एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि इनकी पार्टी गुजरात में तकरीबन 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तरह हैकर्स का ICMR सर्वर पर एक दिन में 6000 बार हमला, लेकिन हमला नाकाम। न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि सरकारी अस्पतालों की वेबसाइट्स को भी हैकर्स ने निशाना बनाया है। मालूम हुआ है कि हैकर्स ने नवंबर में दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के सर्वर पर कब्जा कर लिया था। चीन के हैकर्स ने सर्वर को हैक किया था। तमाम इसी माह हमारे मुल्क में एक और तिब्बी इदारे का सर्वर को हैक किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की वेबसाइट को दिन भर हैक करने की दिन भर कोशिश की। एक ही दिन में 6000 बार ICMR को हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हैकर्स ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल न कर सके। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाज़े पर CM शिंदे तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद फैसला लें। शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का बयान। सीनियर सियासतदान और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बानी सदर शरद पवार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़ों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पवार ने मशवरा दिया कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को कोई भी फैसला लेने से पहले रियासत की तमाम जमातों से मशवरा करना चाहिए। CM शिंदे ने पहले ही कि एक तरफा तौर पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से बात की, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। महाराष्ट्र की आवाम किसी नरमी को कबूल नहीं करेंगे। एक खातून ने 3 शेरों के पीछे पीछे चलते हुए शेख चिलीपन का मुजाहरा किया है। ये वीडियो वायरल। एक खातून की 3 शेरों के पीछे चलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हर कोई जंगली दरिंदों को देखकर खौफजदा होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर हकीकी है या फिर एनिमेशन के ज़रिए बनाई गई है। अगर एनिमेशन के ज़रिए बनाई गई तो ये झूठ है। ये तस्वीर कहाँ ली गई इसकी कोई तफसील नहीं। सर्कस में ली गई या जंगल में। अगर जंगल में ली गई है तो ये एक मौत को दावत देने वाली शेख चिलीपन की हिमाकत है। हाँ, सर्कस में तो ये ऐसा होता ही है। इंडोनेशिया में नए कानून ने शादी से कब्ल जिनसी ताल्लुकात पर पाबंदी लगा दी है। अब शायद मगरबी ममालिक वावेला और तनक़ीदें शुरू कर देंगे। शादी से कब्ल जिनसी ताल्लुकात पर पाबंदी का एक नया कानून इंडोनेशिया ने मुतारिफ़ करवाया है। इस कानून के मुताबिक शादी से कब्ल जिनसी ताल्लुकात क़ायम करने वाले को मुजरिम समझा जाएगा। नए कानून को पार्लिमानी कमीशन के सरबराह बामिंग विलियांतो ने पीर को जकार्ता में पार्लिमानी मुकम्मल इजलास के दौरान इंडोनेशिया के वज़ीर इंसाफ यासोना लावली को पेश किया। हो सकता है कि मादर पिदर आज़ाद मगरबी ममालिक इसकी मुखालिफत करेंगे, क्योंकि इन्हें सतरपोशी और हया रास नहीं आती। अफ़गान शहर बल्ख में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक शिमाल अफ़गानिस्तान के शहर बल्ख में एक ऑयल कंपनी के मुलाजिमीन को ले जाने वाली गाड़ी की खरीद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाक़या मंगल की सुबह 7 बजे के करीब पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐसा मालूम होता है कि चंद ताकतें ये नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में तेल की पैदावार शुरू हो जाए और वो ख़ुद मुख्तफ़ी हो जाए। अफ़गान हुक्मरान तफ्तीश करें और सच्चाई सामने लाएं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक सहाफ़ी शीरीन अबू अकीला के कत्ल का मामला बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ले जाने का फ़ैसला टेलीविज़न नेटवर्क की कानूनी टीम ने तहक़ीक़ात के बाद किया। टीवी की जानिब से नीदरलैंड के शहर हैग में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। अल जज़ीरा की जानिब से ICC से रुजू करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म याइर लपेद का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों से मुतालिक कोई तहक़ीक़ात नहीं करेगा, कोई हमें अखलाक़ियत का दर्स नहीं देगा। इस बयान से इजरायली हुकूमत अपनी हरदर्मी और जुल्म को दुरुस्त साबित करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम कंट्री भी किसी इजरायली सहाफ़ी को मानने की मजाज़ हैं? यह जुल्म और बर्बरियत महज मुस्लिम ममालिक की बुज़दिली से हो रहे हैं। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।